Everyone check. What is visible? Voice is audible or not? Good. Okay, now today we will discuss about 3D shapes, three-dimensional shape. Now see, first I tell you 2D shape. 2D shape means basically the two dimension, length, breadth, either side by side, like rectangle, square, circle. In circle, the radius is important. So these are basically 2D shape, and today we discuss about 3D shape, three dimensional. What is the meaning of three dimensional? In this two dimensional, you see two dimension are length and breadth. These are the dimension by which we can consider a or we can draw any shape. If we draw a rectangle, we need length and breadth. If we draw square, then we need side. Yes, and we know that the sides, all sides are equal. So this is also a 2D, two dimension. Means one is the length and second is the width of the shape. When we have two dimension, then we are able to make 2D shapes. If we have three dimension, so what we include in the three dimension? Height. If the height is there, then you say that it is a 3D shape. Yes. If these two, then 2D, and height is in when a height is included with this, it become 3D. Yes. तो अब ऐसे कौन से शेप्स हैं जो हमारे 3D में कंसिडर होते हैं? सो एंड ऐसी क्या चीज होती है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? ये भी हमें देखना है, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं. सो द फर्स्ट इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. और उसके बाद फिर कोन, पिरामिड, इस तरह की चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं. सो नाउ सी, फर्स्ट इज क्यूब. Suppose this is a cube. Okay, so this is a 3D. And what is the difference between 2D and 3D? In 2D figure, if it is a square, then we are able to know the perimeter. Yes, with this we know the perimeter, and second is the area. If it is a 2D figure, then we are able to know the perimeter and area. Yes, perimeter and area. But in 3D, they, see, in 3D, the number of faces means there is more. This is only area of the one face. ठीक है ना? ये 2D फिगर में क्या हुआ? सिर्फ एरिया ऑफ वन फेस हुआ. बट हियर यू सी इन क्यूबॉइड देयर इज नंबर ऑफ फेसेस. सो नंबर ऑफ फेस इज 6. इट मींस अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो गया? एरिया ऑफ 6 फेसेस. तो दैट इज कॉल्ड अ सरफेस एरिया. दैट इज द surface area. And the surface area of what? 6 face. Yes. And the major difference between this is
we are able to find out the volume. And in this is the major difference. If it is a 2D figure, then we are able to find out the area of the yeah area, the space enclosed by a closed figure. Or if we are talking about or studying about 3D shape, the volume is important because in this the edges bound the figure. Yes, but in this surface area bound the figure. Surface. This face bound the bound some space inside it. Okay. So that space is actually called volume. Volume क्या होता है? Volume is a space enclosed by these 6 faces. 6 फेस जो स्पेस को enclose करते हैं और जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, that is basically called volume. Clear? And now, if it is a cube, then all the faces are identical. Everyone know what is identical? Yes. All the faces are identical. What is the meaning of this? Now, or this is a regular shape. All the faces are identical, or it is the regular shape. It means all the faces are equal. Yes, क्यूब के अंदर सारे फेस इक्वल होते हैं. दैट इज वाई ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल बिकॉज एक ही डायमेंशन होता है. एंड सेकेंड थिंग इज इट इज अ रेगुलर शेप. रेगुलर मीन्स कि अगर हमें एक साइड के बारे में पता है तो हमारे को 6 डिफरेंट साइड्स के बारे में पता चल जाएगा. क्लियर एवरीवन? So basically this is called a cube. Or face is equal to 6, edge is equal to बताओगे और vertices is equal to बताओगे. You know what is edge? Edge क्या होता है? What is the edge? नहीं. Everyone सभी corners को देखें. Corner में जब दो when two faces are meet तो वहां पर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, होती है कॉमन लाइन. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज. तो जो ये इसकी एज है ये है. साइड इज बेसिकली कॉल्ड एज. साइड इज कॉल्ड एज. तो अब मुझे बताओ यू कितने एजेस होंगे इसके अंदर? एग्जैक्टली राइट. इट इज 12. 1 2 3 4 एंड देयर इज अ एक फ्रंट फेस हो गया, एक दो और एक पीछे 6 फेसेस है. तो अब इसमें देखो 6 into 4 कितना हो गया? 24. बट इसमें क्या है कि हर फेस वी नो दैट द अपोजिट अकॉर्डिंग टू दिस द अपोजिट इज इक्वल. तो इसीलिए इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. दैट इज इक्वल टू 12 बिकॉज दो फेस कॉमन हो जाता है. दिस 2 इज कॉमन विद दिस फेस. दिस इज ऑल्सो कॉमन with 2 and this is also common like this. Suppose this is the edge, so this is the common for the this wall and this wall also. Yes, so we just divide it and the number is 12. And now what is vertices? जो भी edge होता है उसका top एक corner है, देखा? तो corner is basically represented as vertices और हम इसको बाद में angle भी कहते हैं. So this is basically a vertex. This is a vertex. This is a vertex. Sit down, please. This is a vertex.
This is a vertex. This is a vertex here, and this is the vertex. यहाँ भी नीचे भी होता है. This is the vertex. So, Sambhav, tell me how many vertex or vertices are there? Yes. So this is basically a 3D shape of cube. ये क्यूब का है और क्यूबॉइड में इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. क्यूबॉइड में इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. उसमें सिर्फ फेसेस आर नॉट आइडेंटिकल. ओनली द अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल इन नाउ. ये तो क्यूब के बारे में बता दिया. अब क्यूबॉइड के बारे में देखो. क्यूबॉइड के लिए ऐसा ही एक शेप ड्रॉ कर लेना. ये लिख लेना उसमें क्योंकि देयर इज 6 फेसेस इन क्यूबॉइड आल्सो, एजेस 12, वर्टिसेस 8. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? तो उसमें क्या था, ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल. यस. इन क्यूबॉइड अपोजिट अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल. कल और अपोजिट फेसेस आर इक्वल, आइडेंटिकल और इक्वल. एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर शेप. ये रेगुलर फिगर नहीं है. बिकॉज रेगुलर फिगर वही होता है जिसकी सारी चीज इक्वल होती है. All the sides are equal, all the vertices are equal, all the edges are equal. But in cuboid, opposite faces are identical, means the opposite. The front one is same with the back one. Beside means the side face is opposite side face are equal, and the top and the bottom. There is 6 faces, one in front, one at back, two sidewards, one up and one down. So the front and back is same, similar in shape, and the sideward is identical, means same, and the top and the bottom. Yes, but in this, one thing you can write, this is the length, okay, and this is the breadth, and this is the height. Is that clear? Length क्या होता है, breadth क्या होता है और height क्या होता है? These four, suppose this is a cuboidal in shape, this classroom is in cuboidal shape. So these four, one corner, two corner, three corner and four corner, this is basically the height. Okay, and you see in the ground, this is the longer one is called length, and the shorter one basically we consider as width. And top same, bottom same. Clear? There is four height, और इसके अंदर हाइट कितनी होती है? 4. लेंथ कितना होता है? 4. और ब्रेथ कितना होता है? 4. ठीक है, मतलब होता तो वो 8 8 है, बट 4 इन कॉमन. दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी कंसिडर 1. दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी कंसिडर 1. ओके, सो देयर इज height is 4, and the sorry, the breadth is 2 here, 2 here, and length is also 1 1 1 1, so total is 4. So there is 4 length, 4 height and 4 breadth. Now the edges are 12. Clear? Vertices are 8. Is that clear? Now cube and cuboid clear, everyone? Now the next shape is cylinder. Next shape is cylinder.
cylinder. This is basically a right circular cylinder. Everyone must draw like this और उसके अंदर मार्क करो. This is the height and this is the radius and this is also a radius. Now you see, this is the 3D figure. 1, 2, 3. 3 dimensions are there. It doesn't matter कि हाइट यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है, वो इक्वल होगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी. अगर हमें सिलेंडर का रेडियस, मतलब अगर हम सिलेंडर ऐसे ना ऐसे बनाए तो क्या ये सिलेंडर नहीं है? ये सिलेंडर है या नहीं है? सिलेंडर का शेप है या नहीं है? यहाँ रेडियस, यहाँ भी रेडियस और ये हाइट. और ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, तो ग्लास इज बेसिकली कॉल्ड अ सिलेंडर, बट वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है. दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा और ये राइट एंगल पे ऊपर भी रहेगा. यहाँ पर ये राइट एंगल होगा तो, लेकिन दिस 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 इज नॉट स्ट्रेट 90 डिग्री. मतलब ये दिस इज राइट सर्कुलर हियर ऑल्सो, बट इस जगह पे ये राइट सर्कुलर नहीं होगा. अगर हम इसको ऐसे ये इसमें ड्रॉ करें तो दिस इज नॉट अ राइट एंगल. ये यहाँ पर ये यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर राइट होगा, बट दिस इज नॉट राइट एंगल. So this is a right circular cylinder and this is just a cylinder. Okay. Now Tanya, tell me कि इस सिलेंडर में कोई फेस है? कितना कितना फेस है? 1. गुड. अगर हम इसके फेस की बात करें तो क्या, आई कैन रब दिस डाउन प्लीज. अब एक सिलेंडर बनाने के लिए हमारे को कितने फेस की रिक्वायरमेंट होगी? क्या क्या चीजें चाहिए जी सिलेंडर बनाने के लिए? वन इज द टॉप. इस टॉप को कवर करने के लिए एक सर्कुलर पीस चाहिए. इस बॉटम को क्लोज करने के लिए एक सर्कुलर पीस चाहिए. और ये इसका कर्व सरफेस एरिया. जो कर्व होता है दैट इज, ये स्ट्रेट नहीं है ना, कर्व सरफेस एरिया. तो कितने फेस हो गए तान्या? 1. कितने? तो फिर तो फेस इज बेसिकली 3. 1 circular top, 1 circular bottom and sideways. This is a curved surface. So face is 3 and number of vertices. अब इसके अंदर कोई vertex है? Is there any corner? Corner तो होगा नहीं because it is a circular. तो circular में corner impossible है. So vertices is equal to 0. And now the next is edges. एजेस. अब इसको एजेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिलेंडर को यहाँ बीच में से काट देंगे. तो काटने के बाद अगर हम किसी भी सिलेंडर को काटते हैं तो वो कौन से शेप में हो जाएगा? इस शेप में. यस, ठीक है ना? इस शेप में खुल जाएगा ना वो सिलेंडर. ऐसे अगर ऐसे है तो ऐसे खुल जाएगा. तो कितने एजेस होंगे इसके अंदर? और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 एजेस होते हैं. 2 एज, जिसको एक एज कहते हैं हम टॉप एज और एक कहते हैं बॉटम एज. So there is 2 edge. Now it is clear. और अब now तुम्हें समझ में आ गया. Now the 3D shape. Why it is a 3D shape? Because 3 dimension is there. Top radius, bottom radius, and the height. Yes. And this shape encloses some volume inside it. इसके बीच में कुछ जगह है जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. That is actually known as volume. इधर हो जाओ. उधर कहाँ चले गए? और इधर हो जाओ. वहां चले गए. उधर उधर से दिखाई दे रहा कुछ? वेरी नाइस. सो दिस इज बेसिकली देयर इज बेसिकली 3 फेस, 0 vertices, edge is equal to 2. This is called cuboid. ठीक है. And the last thing, we can make net
अब हम एक नेट बनाएंगे क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। यस, इज दैट क्लियर ना? सबने ये लिख लिया? और इसमें एक और चीज है, कोन का भी होता है, स्फेयर का भी होता है। तो फर्स्ट भी डिस्कस, कोन भी बता ही देता हूँ, वो भी हो जाएगा। कोन इज लाइक दिस। आइसक्रीम का कोन तो सबने ही देखा होगा। हाँ, और जोकर का कैप भी दे, मतलब बर्थडे कैप और जोकर कैप जो भी है वो इस शेप इन द कोन होता है। एंड नाउ यू सी, दिस इज द हाइट हियर, and this is the height, sorry, this is the height, this is the radius, and this is slant height, yes, and this is represented by L. Now there is three shapes: height, slant height and radius. और इसमें अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस हमारे पास वन, फेस वन, नहीं फेस, अच्छा वन बॉटम ऑल्सो देयर, ओके सॉरी, 1 + 1, दिस इज 2। तो एक इसका बेस है, इसके जो बेस है वो फेस हो गया एक, और एक ये फेस हो गया। ठीक है, दिस इज द कर्व, जो टेंट, जो उसका बाहर का सरफेस है कोन का वो, और उसका जो टॉप ऊपर जो खाली है जिसमें उस आइसक्रीम को फिल किया जाता है। क्लियर एवरीवन? सो द नंबर ऑफ फेसेस आर 2, वर्टिसेस आर वर्टिसेस, एक वर्टेक्स होगा एट द टॉप, दिस इज द वर्टेक्स, कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर, तो दिस इज 1। और एज, एज कितना होना चाहिए? एक, यस, हियर नीचे 1। वैसे तो ये बुक में लिखा हुआ है, और अगर फिगर को ड्रॉ करना चाहता है तो वो ड्रॉ कर सकता है और मेंशन कर लेगा दिस इज द वर्टेक्स हियर। ठीक है, आफ्टर दैट अ स्फेयर, स्फेयर इज अ बॉल। सभी ने बॉल फुटबॉल देखी है, तो वो एक काइंड ऑफ स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर, इसके अंदर हम अगर फेस की बात करें, कितने फेस होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एक ही फेस होगा पूरा का पूरा, बिकॉज दिस इज द फेस ओनली, एंड दिस वर्टेक्स 0 एंड एज 0। ओके, and sphere is based on radius and radius anywhere. Now see the net. यहाँ पर एक एग्जांपल है पेज नंबर 223 पे, नेट ऑफ ए 3D फिगर, दिस इज बेसिकली फॉर अ क्यूबॉइड, एंड इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो इज अ नेट ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ 3, हाइट 2 एंड हाइट, सॉरी, ब्रेथ 2 एंड हाइट 1। सी, सबसे पहले हमें एक फेस बनाना है, दिस इज द मेन। ओके, उसके बाद यू सी, इसके लिए ना, इस चीज को देखने के लिए एक मैच बॉक्स ले लेना। क्या ले लेना? और मैच बॉक्स जब लेंगे
तो ये मैच बॉक्स हो गया। इसका तुमने नोटिस किया होगा कि एक फेस इधर खुलेगा, जिस एक फेस इधर खुलेगा और एक फेस इधर और एक इधर। यस। और उसके बाद जो ऊपर का उसका कवर होगा। यस, कवर होगा ना। जब हम उसे फाड़ेंगे, एक दो तीन, ये तीन तो कवर हो जाएंगे, लेकिन क्या चीज कवर नहीं होगा? एक और फेस जो इसको टॉप में कवर करेगा, ये मैच। ठीक है, तो मैच स्टिक लेने के बाद, मैच स्टिक चाहिए इसके लिए। मैच स्टिक लेके, मैच स्टिक, खाली मैच स्टिक, यू जस्ट टेक अ एम्प्टी मैच स्टिक जिसमें मैच स्टिक स्टोर होता है, उसको खोलोगे तो ये एक दो तीन चार, यस, वो खुल जाएगा। उसके बाद उसका जो ऊपर वाला कवर होता है, उसको सिर्फ एक फाड़ देना। एक फाड़ने के बाद उसको इसके नीचे, इस मैच स्टिक के नीचे रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये एज कवर हो जाएगा, जिसके ऊपर साइड में वी जस्ट रब द स्टिक, मैच स्टिक टू बर्न, जिसपे केमिकल लगा हुआ रहता है, वो एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, और जब हम इसको नीचे रखेंगे तो दिस टॉप, टॉप जो, सॉरी, जो बॉटम होगा वो ओवरलैप्ड हो जाएगा एंड द टॉप कम्स हियर। दिस इज द नेट फॉर, दिस इज द नेट फॉर क्यूबॉइड। ये जो शेप है, दिस इज द नेट फॉर क्यूबॉइड। एंड नाउ यू सी, वन बाय वन आप इसको कवर करो। इफ यू कवर दिस दिस दिस, चारों तरफ से खड़ा किया और इसको कवर किया, तो ये मैच स्टिक क्लोज हो जाएगा। यस, समझ में आई बात? और एक, अगर इसमें और थोड़ा कोई डाउट होगा तो एक काम करना है कि मैच स्टिक जैसे लगा हुआ है उसको निकालना है, और उसका जो बेस है उसमें थोड़ा गम लगा के मैच स्टिक को स्टिक कर देना है, तो एक पोर्शन उसमें स्टिक हो जाएगा। तो सिर्फ टॉप का एक कॉर्नर कट करोगे तो ऐसे खुल जाएगा वो। आई विल ट्राई। मैं देखता हूँ कल मेरे पास कोई मैच एम्प्टी, किसी का तो एम्प्टी मैच स्टिक होगी तो वो ले आना, मैच बॉक्स, सॉरी, तो उसको हम इस तरह से खोल के देखेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर क्यूबॉइड, this net is for cuboid, or this is, the dimension is given here. The length is 3, according to the example the length is 3 and the breadth is 2 and the height is height is 1. So this is basically called a height, one corner, two corner, 3 and 4. This is the height, so this is 1 unit. Clear everyone? इसके बाद जो है क्यूब का नेट है, तो क्यूब के नेट के लिए तो मैं डाई देखना है। ठीक, और डाई को क्या करना है, यू जस्ट टेक अ डाई और उसको बनाना है अपनी कॉपी में। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले उसका एक ये बेस आएगा। यस, एक बेस हो गया। उसके बाद वी हैव ओनली हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब? 6 ना। ओके, तो वन वी ओपन एट द साइडवर्ड्स, कितने फेसेस हो गए टोटल? 3, एंड नाउ वन अप 4 एंड वन डाउन 5, 5 फेसेस हो गए। अब कौन सा फेस नहीं है इसके अंदर? टॉप नहीं है, तो वी विल ड्रॉ टॉप हियर, 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 एनी, just one face you can draw here, here, here or here. Is that clear? कहीं भी बना सकते हो। In our book this is drawn here, I will draw here, no problem. This is the net for cube. When you close this, you get a cube. This is the net for cube. ये समझ में आ गया, क्योंकि 5 फेस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। क्लियर? और टॉप का हम इधर किसी भी फेस के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, इस नेट को बनाने के और भी तरीके हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये नेट यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। एंड दिस नेट हेल्प अस टू नो अबाउट द नंबर इन द डाई। समझ गए?
कैसे समझ गए वो मैं बता देता हूं. सपोज हियर इट इज 3, तो अगर ये 3 है तो ये 1 का पोजीशन है, ये 5 का पोजीशन है, ये 4 का पोजीशन है, एंड दिस इज फॉर 2 एंड दिस इज लास्ट फॉर 6. नाउ सी व्हाट इज द मिडिल नंबर. तो 3 के पीछे मतलब 3 इज द बॉटम एंड 6 टॉप. And what is the opposite of 1 is 3. What is the opposite of 2 is 4. If 2 comes here, then 4 कहां चला जाएगा. इस नेट से हम लोग एक टॉपिक है जो मैथ्स में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग. ठीक है, समझ आई बात. बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम होल रीजनिंग के लिए यूज करते हैं डाइस के लिए, कि 3 है तो उसका अपोजिट क्या होगा 6, 2 है तो उसका अपोजिट क्या होगा 4. एक गिवन होगा फिगर, और उसके बाद नेक्स्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें कहां पर इसका अपोजिट कौन होगा. क्लियर, ये बात समझ में आ रही है. नाउ यू एवरीवन कैन सी हियर. नेक्स्ट, नाउ सी यहां सेंटर में 2 नंबर है 3, 4. यस, there is 4 number in order. Yes, there is 4 number in order. So you will try today. You will try and try to do the exercise 19. Just fill in the blanks and true false. Yes, you book only, and third question in copy. 1 and 2 do in book. Question number 3 in copy. Okay, class is over now. Bye.